गुड मॉर्निंग ऑल. इज माय वॉइस ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके फाइन. चलो. सो कल हम जहां पर रुके थे वहीं से चालू करेंगे. एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन 10 हुए थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. तो लास्ट क्वेश्चन शायद हमारा ये हुआ था. यस, व्हाट स्नैक वुड यू लाइक टू हैव? ओके फाइन. So this was our last question yesterday. Now today we'll start with question number 11, and here it is on your screen. I'll read the entire statement. As news of police violence spread, Patel community members returning to villages and towns from the rally set fire government property. So part 1 क्या है? As news of police, part A. Sorry. Part 1 is as news of police. Part A is violence spread. Part B is Patel community members returning to villages. Part C is and towns from the rally. Part D is set fire government property. So the entire statement sounds like this. As news of police violence spread, Patel community members returning to villages and towns from the rally set fire government property. To solve this question, you have 1 minute and your time starts now. Okay, guys, so your time is up. Now tell me what is the answer. Chalo. Okay, Akanksha is saying B. Pallavi is saying B. Sania B. Samidha D. Okay, fine. So let us see what is the answer. So part 1, as news of police, this is absolutely correct. No error, no grammatical error or contextual error over here. So part 1 is correct. Part A, violence spread. Okay, fine. So spread. Okay. Patel community members returning to villages. So part B is also correct. A is correct. B is also correct. Part C, and towns from the rally. So this is also correct. So the error lies in part D, I think. Set fire government property. Now set fire government property. Now this is incorrect usage. Set fire government property. So this is an incorrect statement or incorrect usage, because we need to use a phrasal verb over here, that is on fire. That is on fire. On fire का मतलब क्या होता है? On fire का मतलब होता है burning. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है burning. ठीक है ना? If something is on fire, for example, if I say the house was on fire. So the house was on fire. मतलब वो house जल रहा था. ठीक है ना? मान लो किसी ने house को जलाया है, तो we can say that the house was set on just a minute. The house was set on
फायर। यहां पर क्या यूज किया मैंने, सेट ऑन फायर। सो दिस इज अ फ्रेज विच वी नीड टू यूज, सेट फायर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इसका कुछ मतलब ही नहीं बना, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होना चाहिए, मतलब इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, सेट। अब सेट के बाद क्या आएगा, कुछ तो नाउन आएगा। तो नाउन क्या है यहाँ पर, सेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। क्या आएगा, सेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑन फायर, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जला दिया। तो यहां पर क्या आएगा, सेट आएगा, देन वी विल बी यूजिंग सम नाउन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ नाउन, एंड देन वी विल बी यूजिंग दिस फ्रेज ऑन फायर। ठीक है, तो आपका एरर है पार्ट डी में। ओके जी, ओके, हैव यू गाइस अंडरस्टूड? क्या ये समझा आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, जल्दी से देख लीजिएगा। वैसे ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, बट मैंने जो बताया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। The only silver line to this recent crisis over reservation was her successful handling of talks with other OBC groups who make up 27% of the state's population. So part 1 क्या है, the only. Part A क्या है, silver line to this recent crisis. Part B क्या है, over reservation was her successful handling. Part C क्या है, of talks with other OBC groups. Part D क्या है, who make up 27% of the state's population. So the entire statement sounds like this. The only silver line to this recent crisis over reservation was a successful handling of talks with other OBC groups who make up 27% of the state's population. To solve this question, you again have 1 minute and your time starts now. Okay guys, so your time is up. जल्दी मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। Okay, Sania is saying C, Madhuri C, Payal C. Okay, okay, fine. चलो देखते हैं क्या होगा इसका। The only silver line, the only is correct. Silver line to this recent crisis. Okay, इसको बाद में देखते हैं। Over reservation was a successful handling.
ओवर रिजर्वेशन वाज अ सक्सेसफुल हैंडलिंग, तो ये बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ टॉक्स विद अदर ओबीसी ग्रुप्स, हैंडलिंग ऑफ टॉक्स, तो हैंडलिंग ऑफ टॉक्स ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विद अदर ओबीसी ग्रुप्स who make up 27% of the state's population. So D is also correct. So B, C, D, everything is correct. आपका एरर है पार्ट ए में, ठीक है ना। नाउ दिस इज अगेन अ फ्रेज दैट वी यूज, ठीक है ना। आपने ये अब ये फ्रेज का पार्ट है, इसमें कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है। सिल्वर लाइनिंग, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एडवांटेज, advantage, advantage that comes or that we can have, that comes from a difficult situation, from a difficult situation, ठीक है ना। I request everyone to make note of this because ये phrasal verbs या ऐसे idioms जो होते हैं वो आपको रट्टा मारने से अच्छा है कि जहां जहां पर ऐसे आप सुनोगे पढ़ोगे तो उसका सीधा सीधा नोट्स बना दो, ठीक है ना। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, एनी एडवांटेज और एन एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपको समझ में आएगा। लेट्स से कि हार्दिक पांड्यास, अब आप लोगों ने सबने वर्ल्ड कप तो देखा होगा, वहां पर इंजूर हुआ था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्यास इंजुरी, Hardik Pandya's injury had a silver lining. Had a silver lining. ठीक है, हार्दिक पंड्या's injury had a silver lining. Silver lining का मतलब क्या है? It had an advantage. अब देखो इंजुरी क्या है? इंजुरी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है कि नहीं? सो इंजुरी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी एक एडवांटेज था। तो हार्दिक पांड्या's इंजुरी had a silver lining, ठीक है ना। It enabled him, इट एनेबल्ड हिम, अब ये मैं हाइपोथेटिकल लिख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा असली में नहीं है, ये ऐसे फिक्टिशियस लिख रहा हूँ, काल्पनिक लिख। तो हार्दिक पांड्या's इंजुरी हैड अ सिल्वर लाइनिंग, इट एनेबल्ड हिम टू रीगैदर हिज थॉट्स, इट एनेबल्ड हिम टू रीगैदर हिज थॉट्स, ठीक है ना। आई बात समझ में? सिल्वर लाइनिंग क्या होता है? एन एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या यहां तक समझ में आ गया? ओके ओके फाइन, ओके ओके फाइन फाइन फाइन। तो यहां पर गलती कहां होगी? सिल्वर लाइन जो है, सिल्वर लाइन मतलब एक कोई लाइन है जो सिल्वर कलर की, ऐसा मीनिंग होता है सिल्वर लाइन। तो सिल्वर लाइन की जगह पर क्या होना चाहिए था? सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपका एरर कहां होगा? आपका एरर होगा पार्ट ए में, ठीक है जी। आई यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ओके चलो ठीक है। तो एक दो और मैं आपको इसी से रिलेटेड, मतलब सिल्वर लाइनिंग आ ही गया तो एक दो और फ्रेजेस आप लिख लेना। सिल्वर लाइनिंग का सबने लिखा है? हैज एवरीवन टेकन द नोट ऑफ दिस? ओके ओके चलो जी ठीक है जी। तो सिल्वर लाइनिंग के साथ साथ ही एक दो और आप लिख लेना, मैं खुद ही लिख देता हूं आपको, ठीक है ना। सिल्वर लाइनिंग हो गया, ठीक है, एक सिल्वर लाइनिंग हो गया। सिल्वर लाइनिंग मतलब सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है? एन एडवांटेज that comes from an advantage that comes from a difficult situation, from a difficult situation, ठीक है। तो एक दो एडवांटेज डिसएडवांटेज से रिलेटेड मैं आपको और एक दो चीजें बता देता हूं। जैसे दूसरा है एन एस अप, एन एस अप योर स्लीव, एन एस अप योर स्लीव, ये भी एक फ्रेज है। एन एस अप योर स्लीव, ये फ्रेज बोलो या इडियम बोलो,
इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज या सीक्रेट स्किल that will give you an advantage, that will give you an advantage. अब देखना सिल्वर लाइनिंग क्या है? an advantage that comes from a difficult situation. एंड ए सब योर स्लीव मतलब क्या होता है? कोई आपके पास सीक्रेट नॉलेज होना या कोई सीक्रेट स्किल होना जो आपको एक एडवांटेज दे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, और एक बता देता हूं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ both the best of both worlds, the best of both worlds. अब इसका मतलब क्या होता है? A situation, this means a situation in which, a situation in which you can enjoy, situation in which you can enjoy the advantages, the advantages of two very different things, of two very different things at the same time, at the same time. Okay? What does this mean? It means it is a situation in which you can enjoy the advantages of, sorry, in which you can enjoy the advantages of two very different things at the same time. Okay? ठीक है, तो ये दो तीन चीजें अब देखना है, सिल्वर लाइनिंग में भी एडवांटेज है, एंड एस ऑफ योर स्लीव में भी एडवांटेज है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड में भी आपका एडवांटेज ये शब्द आ रहा है। ठीक है, सो एडवांटेज से लेके दो तीन इडियम्स हमने देख लिया अभी। ठीक है, सो हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? क्या आपको ये समझा है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आई होप कि आप लोगों ने सब लोगों ने ये लिखा हुआ है। देखो, जब भी आप पढ़ाई करोगे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को ऐसा रट्टा मत मारना, ठीक है ना? रट्टा मारने से क्या है कि 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। सिचुएशनली पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड करके आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने एडवांटेज, बस एक शब्द में हमें एडवांटेज मिल गया सिल्वर लाइनिंग में, तो उस एडवांटेज से लेके हमने और एक दो इडियम्स देख ली। ठीक है ना? तो आप जब भी पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? A lot of real estate companies may come up with tempting offers and discounts, but buyers should always keep their eyes open and must check whether all approvals are in place or not. तो पार्ट 1 क्या कह रहा है? A lot of real estate companies. पार्ट ए क्या कह रहा है? May come up. पार्ट बी क्या कह रहा है? With tempting offers and discounts, but buyers should. पार्ट सी क्या कह रहा है? Always kept their eyes open and must check. पार्ट डी क्या कह रहा है? Whether all approvals are in place or not. To solve this question, you have 1 minute and your time starts now.
ओके गाइस, टाइम इज अप। बताओ कहां पर होगा एरर। ओके, एवरीवन इज सेइंग सी। फाइन फाइन फाइन, चलो देखते हैं क्या है। A lot of real estate companies, a lot of real estate companies, so part one is correct. A lot of real estate companies may come up, so part A is correct, with tempting offers and discounts, but buyers should, so B is also correct, should always kept there, should always kept there. अब यहां पर गलती है पार्ट सी में, ये कैसा होना चाहिए था, should always kept नहीं आएगा, should always keep आएगा, ठीक है ना, शुड ऑलवेज कीप। अगर यहां पर हम इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हैव शुड हैव ऑलवेज शुड हैव ऑलवेज केप्ट, ठीक है ना। ऑलवेज अब यहां पर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शुड हैव केप्ट, ठीक है ना। चलो मैं लिख ही देता, शुड हैव केप्ट होगा, या शुड हैव ऑलवेज केप्ट होगा, या फिर शुड ऑलवेज कीप। यहां पर क्या है, बट बायर शुड ऑलवेज केप्ट की जगह पर होना चाहिए था आपका कीप। तो एरर कहां पर है, एरर आपके पार्ट 3 में है। क्या ये बात समझ में आ गई? डिड यू अंडरस्टैंड? Okay, so most of you who haven't answered, everyone is correct. Always kept their eyes open and must check की जगह पे होना चाहिए था always keep their eyes open and must check. So that is the करेक्ट आंसर हुई है, पार्ट सी में आपका एरर है, और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। बट एक्सप्लेनेशन यहां पर गलती है थोड़ी, यहां पर नो एरर नहीं है, यहां पर नो एरर की जगह पर होना चाहिए था, आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था 3, दैट इज सी, ठीक है। यहां पर एरर है, थोड़ा सा गलती हो गया यहां पर, बट आई टोल्ड यू द एग्जैक्ट आंसर, सो कंफ्यूज मत होना। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, before investing you should look after the overall business dynamics of the company along with efficient management and good corporate governance. पार्ट 1 क्या कह रहा है, बिफोर इन्वेस्टिंग। पार्ट ए क्या कह रहा है, यू शुड लुक आफ्टर दी। पार्ट बी क्या कह रहा है, ओवरऑल बिजनेस डायनामिक्स ऑफ द कंपनी। पार्ट सी क्या कह रहा है, अलोंग विद एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड पार्ट डी क्या कह रहा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई विल रीड द एंटायर स्टेटमेंट अगेन। Before investing, you should look after the overall business dynamics of the company, along with efficient management and good corporate governance. To solve this question, you have 1 minute and your time starts now.
ओके गाइस, योर टाइम इज अप। तो जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। पायल, आकांक्षा, सोमकुमार, अश्विनी, आरती, एवरीवन इज सेइंग ई, नो एरर। ओके फाइन, चलो देखते हैं। बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। बिफोर इन्वेस्टिंग, so this part is correct, no issues. You should look after the, so part A is also correct. You should look, no, sorry, you should look after the, just hold on. Before investing, ये correct है. You should look after the, अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पर। Overall business dynamics of the company. So overall business dynamics of the company after the overall, अच्छा तो ये correct है. Along with efficient management, and so part C is correct. Good corporate governance, so part D is correct. अब A में गलती है, ठीक है ना, you should look after, अब देखना यहाँ पर क्या है, look after का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर। क्या मतलब होता है इसका? टू टेक केयर ऑफ, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, और एक दो चीजें आपको बता देता हूं। लुक अराउंड, ठीक है ना, लुक अराउंड का मतलब होता है विजिटिंग अ प्लेस, visit a place and see what is there, एक जगह पर जाना और वहां पर देखना आजू बाजू, तो उसको कहते हैं लुक अराउंड। लुक डाउन ऑन, इसका मतलब क्या होता है? टू कंसिडर समवन एज इंफीरियर, someone or something, as inferior। ठीक है, एंड लुक एट का मतलब क्या होता है? टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट, और स्क्रूटिनाइज समथिंग। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ। लुक अराउंड का क्या मतलब होता है? विजिट अ प्लेस एंड सी व्हाट इज देयर। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है टू कंसिडर समवन और समथिंग एज इंफीरियर। लुक एट का मतलब होता है टू एग्जामिन, इंस्पेक्ट और स्क्रूटिनाइज समथिंग। क्या ये आपको फ्रेजेस समझ में आ गए? लुक आफ्टर, लुक अराउंड, लुक डाउन ऑन, लुक एट, समझ में आ गई ये? ओके, अब आप ही लोग मुझे बताओ कि पार्ट ए में तो गलती है, मैंने बता दिया। यू शुड लुक आफ्टर द नहीं आएगा, तो उसके बदले में क्या आएगा इन चारों में से? चलो फटाफट बताओ। लुक आफ्टर आएगा, लुक अराउंड आएगा, लुक डाउन आएगा, या लुक एट आएगा? ओके, सो पायल इज सेइंग एट, महेश यादव इज सेइंग एट, अभिजीत इज सेइंग लुक एट, वेरी गुड। बाकी लोग, आरती, पल्लवी, मधुरा, नाइस। चलो, यहां पर क्या आएगा? यू शुड लुक आफ्टर की जगह पर होगा, इसके बदले पे आएगा लुक एट। ठीक है, तो पार्ट ए में आपका एरर है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बस दिया है रिप्लेस आफ्टर विद एट, लेकिन मैंने आपको दो चार और भी फ्रेजेस समझा दिए हैं। रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो दैट आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। Having said that, let's move to question number 15, and here it is on your screen. Considering that a large part of the population in India does not have access to banking services, payments banks are expected to reach far-flung areas, extending the umbrella of financial inclusion to everyone. So I'll read it part by part. Part one क्या कह रहा है? Considering that a large part A क्या कह रहा है? Of the population in India. Part B क्या कह रहा है? Does not have access to banking services. Part C क्या कह रहा है? Payments banks are expected to reach far-flung areas. Statement D क्या कह रहा है? Extending the umbrella of financial inclusion to everyone. So the entire statement is like this. Considering that a large part of the population in India does not have access to banking services, payments banks are expected to reach far-flung areas, extending the umbrella of financial inclusion to everyone. To solve this question, you have 1 minute and your time starts now. चलो guys, so time is up. बताओ मुझे क्या होगा आंसर? पल्लव is saying D. Okay. बाकी लोग क्या हो गया? आरती सिंह डी। चलो देखते क्या होगा आंसर। पार्ट वन, कंसिडरिंग दैट ए लार्ज पार्ट, तो दिस इज करेक्ट। लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। सो large part of the population in India does not, so population does, okay, does not have access to banking services. So part B is correct, A is correct. Does not have access to banking services. Payments banks are expected to reach far-flung areas. ये भी correct है. Extending the umbrella of financial inclusion. Extending the umbrella of financial inclusion to everyone. Part D is also correct. So part A is correct, B is correct, C is correct, D is correct. तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? No error. So the sentence is absolutely right. There is no error in this statement. ठीक है जी? Is that okay? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन पहले ये नो एरर वाला स्लाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, despite the merger the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees. पार्ट वन क्या कह रहा है? डिस्पाइट द मर्जर। पार्ट टू क्या कह रहा है? द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड। पार्ट थ्री क्या कह रहा है? साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल। एंड पार्ट फोर क्या कह रहा है? टू पे देयर एम्प्लॉइज। सो आई रीड द एंटायर स्टेटमेंट अगेन। Despite the merger, the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees. To solve this question, you have 1 minute and your time starts now.
ओके गाइस, योर टाइम इज अप। क्या आंसर होगा? चलो चलो जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। अश्विनी सेइंग 3, आरती सेइंग 1, मधुरा सेइंग 1। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। Despite the merger, so part 1 is correct. Despite the merger, the airline has reported, okay, sizable losses and is unable to pay their employees. Okay, I got the error. चलो, लेकिन मैं उससे पहले आपको पूछना चाहूंगा। चलो जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ये जो आपने अभी स्टेटमेंट देखा, डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड their employees, इसमें सब्जेक्ट क्या है ये बता। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस स्टेटमेंट? Airline. Okay, Payal Hanwate is saying airline. Ishika is saying the airline. Okay. Okay, airline, airline. Very good, very good, very good, very good girls. Very nice, very nice. चलो एयरलाइन है, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताना एयरलाइन सिंगुलर है कि प्लूरल है। वेरी गुड अर्चना, आरती वेरी गुड। अब मुझे ये बताना एयरलाइन सिंगुलर है कि प्लूरल है। आरती अहिरवार इज सेइंग प्लूरल। ओके ओके। आकांक्षा इज सेइंग सिंगुलर, मधुरा इज सेइंग सिंगुलर, प्रज्ञा सिंगुलर। ओके जी, ओके, नाउ दिस इज वेरी गुड। आरती देखो आपका गलत हो गया है, ये प्लूरल नहीं है। अगर वो एयरलाइंस होता तो वो प्लूरल हो जाता, ठीक है ना। अगर वो एयरलाइंस होता तो वो प्लूरल होता। ये तो ये यहाँ पर सिंगुलर होगा क्योंकि ये एक ही एयरलाइन है ना। एक एयरलाइन है तो वो सिंगुलर होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। अब देखिए, चलो अब अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखूं, इंडिया हैज इट्स ओन cultural, India has its own cultural identity. Let's say India has its own cultural identity. And let's say South Asian countries, have dash own identity. ठीक है ना। आपके पास मैंने दो स्टेटमेंट्स रखे हैं, ये पहला वाला है, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला, ठीक है ना। पहला वाला क्या है? इंडिया हैज इट्स ओन कल्चरल आइडेंटिटी। दूसरा है साउथ एशियन कंट्रीज हैव डैश ओन आइडेंटिटी। अब ये ब्लैंक में आप क्या लिखोगे? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताओ। ये जो मैंने ब्लैंक रखा हुआ है हैव के बाद, उसमें क्या आएगा? ओके, देयर आएगा। इसी का देयर का स्पेलिंग आपका गलत हुआ है, मतलब देयर का स्पेलिंग भी गलत हुआ है और उसका मतलब भी गलत होता है, ठीक है ना। तो पायल करेक्ट, इसी का करेक्ट, मधुरा करेक्ट, प्रज्ञा करेक्ट, वेरी गुड। अब आपने देयर का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ पर? आरती, देयर का स्पेलिंग ये वाला देयर नहीं यूज करना है, जो आकांक्षा, प्रज्ञा, मधुरा इन्होंने जो देयर यूज किया वो वाला देयर यूज करना है, ठीक है। अब मुझे आप बताना कि देयर आपने क्यों यूज किया यहाँ पर? व्हाई डिड यू यूज देयर आफ्टर हैव? हैव के बाद आपने देयर क्यों यूज किया? सब्जेक्ट इज प्लूरल। वेरी गुड पायल, वेरी गुड, क्वाइट इंप्रेसिव, नाइस। चलो, तो यहां पर हमने देयर यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट जो था साउथ एशियन कंट्रीज, ये जो सब्जेक्ट जो है ये क्या है? ये प्लूरल है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, गुड। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। अब यहां पर आप लोगों ने क्या बोला था? एयरलाइन इज सिंगुलर,
हाँ या ना? चलो थम्स अप दे दो मुझे। ओके, तो अगर एयरलाइन सिंगुलर है, अब देखना, अब ये पहला वाला स्टेटमेंट देखना, इंडिया क्या है? इंडिया सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक ही कंट्री है, तो सिंगुलर हो गया नाउन ये। तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज किया? इट्स यूज किया। किया कि नहीं किया? वेरी गुड। तो एयरलाइन भी सिंगुलर है, तो एयरलाइन अगर सिंगुलर है तो कहां पर गलती होगी? फटाफट बताना मुझे, कौन से पार्ट में गलती होगी? टू पे इट्स एम्प्लॉयज। परफेक्ट इशिका, वेरी गुड। इशिका जायसवाल करेक्ट आंसर, एकदम फटाफट दे दिया उसने। अभिजीत भी सही कह रहा है, पार्ट 4 में एरर है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एयरलाइन जो है, एयरलाइन इज ए सिंगुलर नाउन, सो सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल आ गया। देयर की जगह पर आना चाहिए था आपका इट्स। करेक्ट आंसर विल बी ये पार्ट 4, देयर की जगह होना चाहिए था इट्स। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, बट फिर भी आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल दें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, we have recently began the process of recruiting insurance agents for our northeastern branches. I'll read it part by part. Part 1 क्या कह रहा है? We have recently began. Part 2 क्या कह रहा है? The process of recruiting. Part 3 क्या कह रहा है? Insurance agents for. Part 4 क्या कह रहा है? Our northeastern branches. The entire statement sounds like this. We have recently began the process of recruiting insurance agents for our northeastern branches. To solve this question, I give you 1 minute. Your time starts now. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट होना चाहिए। Okay, Sania is saying 1, Abhijit is saying 1, Ishika 1, Payal 1, Ashwini 1. Very good guys, very good girls. चलो आरती is saying 1, प्रज्ञा 1, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। बहुत ही आसान है। We have recently began. अब मुझे ये बताना, मैं ये यहाँ पर सेपरेट पार्ट ये लिख देता हूँ। We have recently, ठीक है ना? We have recently। अब मुझे पता नहीं कौन सा टेंस है, चलो फटाफट, कौन सा टेंस है ये? We have recently। पास्ट कैसे होगा? हैड आएगा तो पास्ट आएगा ना इशिका। प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड पल्लवी, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल आई प्लस हैव प्लस ड्रॉन। आई हैव ड्रॉन, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगा दो, आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर, आई हैव ड्रॉन अ पेंटिंग, समथिंग लाइक दैट। बट स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? ड्रॉन लिखा। ड्रॉन मतलब कहां से आता है ये? इसका बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म या फिर V1 आप जिसको बोलते हो, वो होता है ड्रॉ। पास्ट फॉर्म क्या होता है इसका? जिसको आप लोग V2 बोलते हो, दैट इज ड्रू। एंड V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसका? ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। वी हैव रिसेंटली बिगैन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बिगैन। तो बिगैन की जगह पर क्या होना चाहिए था? बिगैन की जगह पर क्या होना चाहिए था? करेक्ट पल्लवी, तुम्हारा करेक्ट ये है कि हैज हैव होना चाहिए था। दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। एक्चुअली पल्लवी इज करेक्ट।
आई गिव यू पार्शियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज होगा। थैंक यू पल्लवी फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो हैव हैज दैट विल डिपेंड ऑन दी गिवन सब्जेक्ट। सो थैंक्स अगेन पल्लवी। ओके, अब मुझे बताना बिगैन यहां पर दिया हुआ है, तो बिगैन की जगह पर क्या आएगा? वी हैव रिसेंटली। अब बिगैन का बेस फॉर्म क्या है? बिगिन है ना। बेस फॉर्म क्या है? चलो यहां पर लिख देते हैं, बिगिन है। बिगिन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? बिगैन। और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 क्या होगा? बिगन। वेरी गुड मधुरा, वेरी गुड वैष्णवी। करेक्ट आंसर इज बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन। तो वी हैव रिसेंटली बिगन, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। पार्ट 1 में आपका एरर है, बिगैन की जगह पर होना चाहिए था बिगैन। देखो यहाँ पर गलती ना हो जाए तो बिगैन की जगह पर होना चाहिए था बिगन, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले ये मैंने बता दिया डिटेल में, पर फिर भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। The company's decision to issue bonus shares clearly indicates the management's confident about the future. तो पार्ट 1 क्या कह रहा है? The company's decision to issue. पार्ट 2 कह रहा है bonus shares clearly indicates. पार्ट 3 कह रहा है the management is confident about the future. So the entire statement sounds like this: the company's decision to issue bonus shares clearly indicates the management's confident about the future. To solve this question, you have 1 minute. Your time starts now. Okay, Madhuri is saying 3. Okay, Akanksha is saying 3. Akanksha Dalvi is saying 3. Sania 3. Okay, very good, very good, very good. चलो देखते हैं क्या होगा आंसर। कंपनीज डिसीजन टू इशू, तो ये पार्ट 1 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स, बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स, तो पार्ट 2 इज करेक्ट। मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, अब देखो बहुत ही आसान था, पार्ट 4 में करेक्ट है, पार्ट 4 भी करेक्ट है, सॉरी। पार्ट 1 करेक्ट, पार्ट 2 करेक्ट, पार्ट 4 करेक्ट, पार्ट 3 में आपका एरर है, ठीक है ना। मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट, अब देखना यहाँ पर क्या है? कंपनीज डिसीजन, क्या ये कंपनीज डिसीजन? देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से माधुरीज कार, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया ना, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया कि माधुरी की कार। तो जब भी पॉजिटिव लगाते तो आगे नाउन आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी देखो पार्ट 1 में क्या है? कंपनी का क्या है? कंपनीज डिसीजन, तो डिसीजन इज अ नाउन। वैसे ही मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट क्या है? कॉन्फिडेंट इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव। कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नाउन, और नाउन क्या है? कॉन्फिडेंट का नाउन क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट का नाउन क्या है? कॉन्फिडेंस। द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंट की जगह पर होना चाहिए था कॉन्फिडेंस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, उससे पहले ये स्क्रीनशॉट निकालना फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन स्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर
of the importance of IT, they often do not know how to deploy it effectively. Okay, so I'll read it part by part. In spite that organizations are aware, part 2, of the importance of IT. Part 3, they often do not know. Part 4, how to deploy it effectively. So entire statement sounds like this, that I'll read it again. In spite that organizations are aware of the importance of IT, they often do not know how to deploy it effectively. So you have 1 minute to solve this and your time starts now. Just hold on for a minute. The sentence is correct. Sorry, incorrect. थोड़ा सा यहाँ पर error है. The sentence itself, entire statement is incorrect. So just leave it. Do not solve it. We will just skip this question as of now. क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा गलतियाँ है. ठीक है ना? So we'll just leave it. We'll go to the last question. ठीक है? क्वेश्चन 19 को हटा दो, वो उस पर टाइम वेस्ट मत करना. ठीक है? आई बात समझ में? हाँ, चलो. So let's go to question number 20, last question of the day. Keeping in mind that India is one of the world's fastest growing economies, many international companies are invested in India. So part 1 क्या कह रहा है? Keeping in mind that India. Part 2 क्या कह रहा है? Is one of the world's fastest. Part 3 क्या कह रहा है? Growing economies, many international. Part 4 क्या कह रहा है? Companies are invested in India. ठीक है? So the entire statement sounds like this. Keeping in mind that India is one of the world's fastest growing economies, many international companies are invested in India. To solve this question, I give you 1 minute and your time starts now. Okay, so your time is up. चलो फटाफट बता देना. ओम सुरवासी सिंह 4, I think. Okay. Pallavi is saying 4. Okay, companies are invested in India. Okay, चलो जी ठीक है. चलो. Okay, चलो देखते क्या होगा इसका आंसर. Keeping in mind that India, okay, correct है, कोई दिक्कत नहीं. Is one of the world's fastest. So part 2 is correct. Fastest क्या? Growing economies, many international companies. Growing economies. So ठीक है. Part 3 भी ठीक है. Companies are invested in India. बहुत ही आसान है. Part 4 में एरर है. ठीक है ना? ठीक है ना? अब subject plus am is are
एम इज आर, ये कौन से स्ट्रक्चर, कौन से टेंस के स्ट्रक्चर में आता है, जल्दी बताना। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इसके बाद क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, ये बताना। अब ये बहुत ही बेसिक एरर, बेसिक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, फॉर एग्जाम्पल आई एम, ठीक है ना, आई सब्जेक्ट हो गया, प्लस एम इज आर में एम हो गया, प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड प्रज्ञा। ओम शुरुआत से कह रहा है आईएनजी, वेरी गुड ओम। तो यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस आईएनजी, है ना, प्लस आईएनजी आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आया है, पास्ट फॉर्म आया है, तो यहाँ पर इन्वेस्टेड की जगह पर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टेड की जगह पर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग। ये कौन सा टेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस आईएनजी, ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया ना आपका, हाँ या ना। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना, यूं ही मैं बक रहा हूं बस यहाँ पर। ओके ओके, ठीक है। ओके, मधुरा देव प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला है आपने, बहुत सही। ओके पल्लवी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, कंपनीज आर इन्वेस्टेड की जगह पर होगा कंपनीज आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। पार्ट 4 में एरर है, दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो जल्दी, ठीक है जी। देखो मैं इसको इरेज करता हूँ फिर निकाल, ठीक है। तो yes, so that is it for the day guys. Thank you so much for joining in this session, and I hope that you will be joining in our next session of error detection. एरर डिटेक्शन के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो बहुत सारे सेशंस हम करवा के लेंगे, चिंता मत करो, बस कंसिस्टेंटली आप लेक्चर्स को प्रेजेंट रहना, ठीक है। Having said that, I'll take your leave. So thank you so much. See you next time.